Namaste, welcome back to the channel. So today we are going to start an important examination helpline related series for the students of BAMS undergraduation as well as certain postgraduates if you are interested to go through. So what we are going to do in this series is जो भी क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है, जो पुराना क्वेश्चन पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी से मिलेगा, so we'll compile them and we'll try to give an ideal answer for each type of such question. कभी कभी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपने आप हम लेके उसका उत्तर भी कैसे देना है एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम डिस्कस करेंगे. इससे आपका जो राइटिंग स्किल है इट विल एनहांस, एट द सेम टाइम योर मार्क्स आल्सो विल बी ऑन हायर साइड एंड दिस इज हाउ यू कैन इवन प्रिपेयर फॉर अदर क्वेश्चंस. द आइडिया यू आर गोइंग टू गेट. तो जरूर इस सीरीज को आप देखिए. अगर आप बीएमएस पढ़ रहे हैं और अगर आपको एग्जामिनेशन के स्ट्रेस है तो इस तरह की वीडियोस देखने के बाद आपको जरूर ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. तो उसी उद्देश्य से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज का चर्चा का विषय है दी ऋतुचर्या. whenever you are getting a question related to any ऋतुचर्या, how you need to answer the question, that is the whole video about. So kindly watch this till the end. So student helpline in relation to examination is one of the most important aspects of today's time because I believe certain students are very much skilled but at the same time the talent doesn't match their answer paper. उनको जो लिखने का तरीका है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है तो या बैक हो जाता है. तो इतना पढ़ने के बाद भी, प्रिपरेशन के बाद भी कभी ना कभी उनका जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से वो उदास हो जाते हैं. सो to bridge that gap, how to write the examination answers in an ideal manner or in a innovative manner is going to be discussed in this series. So today's the discussion is how to answer a question on any ऋतुचर्या, Charaka Sahita or Ashtanga Hridayam. All answer will be same. Since the NCSM has already merged the ऋतुचर्या Adhyaya post Ashtanga Hridayam and Charaka Sahita in the first professional BMS itself. So this will be usually asked in the first professional BMS. Same question can come in your other subjects like Swasthya Vritta and even certain allied subjects. So without wasting any time, we'll start the answer, ideal answer. तो आपको आंसर लिखने से पहले एक चीज दिमाग में रखना है कि हमेशा आंसर एक ही जगह से देना है ऐसे नहीं है. कभी कभी क्या होता है, एक आंसर का जो क्रॉस रेफरेंसेस है, मतलब रिलेटेड टॉपिक है, वो कहीं दूसरा चैप्टर में भी हो सकता है. ये अगर आपके दिमाग में आ गया, डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर एनी एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स. So main chapter will be there. At the same time, there will be some cross references from other chapters. We'll see them in relation to ऋतुचर्या. So the main chapter in this case will be the Sutrasthana 3rd Adhyaya ऋतुचर्या, and in case of the Charaka Sahita it is Tasya Shiti Adhyaya Sutra 6. Now other references where you can get the information related to ऋतुचर्या कहाँ पर मिलेगा? सूत्र फर्स्ट में भी मिल सकता है, सेकंड में भी मिल सकता है, 5, 6 में भी मिल सकता है, 7 में भी मिल सकता है. तो बहुत सारे मैटर है, तो हम उसको जरूर आगे देखेंगे. तो इंट्रोडक्शन हो गया, तो जरूर हम अभी आंसर में जाएंगे. तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा मेन अध्याय में देखने को मिलता है. तो अधिकरण मींस द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस टॉपिक इज प्रेजेंट, द मेन कॉन्टेक्स्ट. So we'll write this mainly is dealt in the chapter of ऋतुचर्या in Sutrasthana 3rd Adhyaya. And also certain references can be obtained from other chapters. So that is your beginning of the answer. जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप उसका अधिकरण लिखिए ताकि कम से कम एग्जामिनर को पता चल जाए कि you have studied that particular topic. Now after that, what I have seen students writing is they start writing it is compared with the summer, winter. It is compared with January, February, March, April. So don't do that. What you need to do is you have to go for classical information. In classics, what you have is the names of 12, that is Masa as per the Indian calendar, and is mentioned in brief, Magadhyehi, and in commentary you can get the exact names with the Ritu as well, the corresponding Ritu. Initially start which months or Masa are corresponding to that particular Ritu. Now, which Ritu comes before that and which comes after that? Shishirot Vasantasya Grishma Varsha Sharad Hemanta. So which comes before that and which comes after that? This will give you bonus marks, in the sense some bonus ideas. You are going to cover the answer in a legitimate manner. उसके साथ साथ आपका आंसर भी
आंसर का जो लेंथ है वो भी कम नहीं होगा, तो ऐसे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे इंट्रोडक्शन टू दैट पर्टिकुलर ऋतु, वो कौन सा आयन में आता है, उत्तरायण में आता है या दक्षिणायन में आता है, तो वो आपको लिखना है, इट्स अ पार्ट ऑफ विच आयन। नेक्स्ट पॉइंट्स बेस्ड ऑन, अभी जैसे आपने दक्षिणायन लिख दिया, दक्षिणायन का कॉमन फीचर्स आपको पहले ही पता होगा। अगर आपने उत्तरायण लिख दिया, अगर उत्तरायण के ऋतुचर्या आ गया तो आपने पहले ही लिख दिया कि ये इसका उत्तरायण का लक्षण है, मतलब उत्तरायण है में आता है, और उत्तरायण का कॉमन जो फीचर्स है आपको पहले ही पता होता है, तो उसको आपको वहां पर लिखना है कि दिस ऋतु इज मोर ऑफ वृक्ष, यहाँ पर जो सोम है उसका बल ज्यादा रहेगा कम रहेगा, तो सारे मैटर जो है आपको वहां पर कवर करना पड़ेगा। जैसे ही आप लिख दिए कि ये उत्तरायण दक्षिणायन में ये फीचर्स होगा, प्रधान रथ, व्हाट इज द प्रधान रथ इन दैट पर्टिकुलर ritu as per the introduction of Dakshinan and Uttarayan. That also you can write. Sharira Bala, one of the important information in relation to Ritucharya. Majority of the activities of Ritucharya is dependent on this Sharira Bala. वो भी आपको इंट्रोडक्शन में ही देखने को मिलता है कि ये प्रवर है, मध्यम है, अवर है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा इनिशियली। सो बाय नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड, ऋतुचर्या एक्चुअल जाने से पहले ही आपका इंट्रोडक्शन आंसर कवर हो जाता है। सो इवन इफ यू आर writing not so proper answer, still you are going to get at least 1 or 2 out of 5. So that is the importance of this introduction, because this is right and examiner will get to know that you have studied well. उसके बाद एक्चुअल ऋतुचर्या पे आप जाएंगे तो सबसे पहले ऋतुचर्या में उस ऋतु का एक स्पेसिफिक खास बात जो है उसको बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वसंत इट सेज शिशिरे संचितः श्लेष्मा, द वन व्हिच गॉट चयावस्था इन शिशिरा इज नाउ गेटिंग इनटू प्रकोपावस्था बिकॉज ऑफ सूर्य किरण। सो वसंते कफश्चित भाविरीरितः, सो दैट इज द कफ दोष इज गोइंग टू गेट इनटू प्रकोपावस्था, क्योंकि वहां पर जो है जो जम गए हैं कफ दोष वो पिघल कर बिकॉज ऑफ सूर्य किरण इट विल एंड अप इनटू प्रकोपावस्था। वहां पर इस तरह का इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वैसे ही हर एक ऋतुचर्या के इंट्रोडक्शन में उस ऋतु के खास बात जो है वो वर्णन है वो आपको देखने को मिलेगा। यू कैन राइट दैट इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोष बिफोर एंटरिंग इनटू द ऋतुचर्या। दोषावस्था के बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द दोष धातु मला इन दैट पर्टिकुलर ऋतु। दैट इज द सेम थिंग व्हाट इज मेंशन्ड इन दैट ऋतुचर्या। सो यू आर नॉट हैविंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सर्टेन टाइम्स इन द ऋतुचर्या अध्याय। व्हाट यू कैन डू इज, आपको जाना पड़ेगा सूत्र 12, वहां पर आपको एक कॉमन श्लोक मिलता है जो सबको पता है, क्षय प्रकोप प्रशमाः वायो ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु तो पित्तस्य। तो ये जो श्लोक है इसको आप पहले ही याद कर दिए होंगे और ये 6 के 6 ऋतुचर्या में भी काम में आएगा। तो इसको आप टेबल फॉर्म में बना सकते हैं और उस ऋतु से रिलेटेड जो मैटर है बस उतना ही आपको अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वसंत ऋतु के बारे में बात है तो वसंत जहां पर आया उस टेबल में उसको आपको मार्क करना है। तो आप श्लोक भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है। ये क्रॉस रेफरेंस के लिए एक एग्जाम्पल है, हालांकि हम लिख रहे हैं ऋतुचर्या लेकिन हम क्रॉस रेफरेंस ले रहे हैं फ्रॉम दोष भी दिए। नाउ अग्नि के ऊपर क्या मैटर स्टेटस है, so sometimes it is given, sometimes it is not mentioned, but you have to analyze from each ऋतुचर्या point of view what is the status of Agni. Again, this will have its role during planning of food and diet, that is diet and regimen. now उसके बाद जो भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आएगा उसको आप फ्लो चार्ट के हिसाब से इजीली डेबिट कर सकते हैं। जो सबसे मुश्किल लगता है लोगों को या स्टूडेंट्स को, दैट इज द आफ्टर सर्टेन फ्यू लाइन्स ऑफ ऋतुचर्या, उसको क्या करना है इजिली एक फ्लो चार्ट के रूप में आप इजिली तैयार कर सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि इस ऋतुचर्या में हमें मेनली 2 चीज देखने को मिलेगा। वन इज कॉल्ड एज शोधना, अनदर वन इज कॉल्ड एज शमना। So basically whatever we are doing is falling under one of them, that's all. So start with shodhana on one column, that is on one side, shamana on the other side. In shodhana, which is that particular shodhana which is described there, whether it is vamana in case of vasanta, whether it is the virechana in case of sharad, whether it is raktamoksana in case of sharad, so you can write easily. It is matter of common sense as well as the textual matter. Easily you can manage the ऋतुचर्या। उसके बाद आपको लिखना है शमन में 2 तरह के शमन वहां पर देखने को मिलता है। वन इज द्रव्यभूता where we induce or we give certain drug and then drug is taken into the body and then acts. दूसरा है अद्रव्यभूता, हम कोई द्रव्य नहीं दे रहे, कुछ एक्सरसाइज बता रहे, कुछ ऐसे विहार बता रहे और वो विहार से ही वहां पर ठीक होने का संभावना रहता है या एक साम्य अवस्था को लेके आने का संभावना रहता है। तो कुछ द्रव्यभूत है कुछ अद्रव्यभूत है। तो द्रव्यभूत में क्या आएगा, एक तो अंत परिमार्जन, एक बहि परिमार्जन। अंत परिमार्जन में हम इंटरनली अग्नि जाठराग्नि के संबंध में लेके आते हैं। अदर वन इज बहि परिमार्जन वेयर एक्सटर्नली वी
give the medicine so that patient is applying. So again, it is of two types, Dravyabhuta, that is Anta Parimarjan and Bahi Parimarjan. These are headlines you need to remember in your mind. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब आपको ये मन में याद हो जाता है तो अपने आप आंसर फिल कर सकते हैं. If you know the Ritucharya concept, you can directly easily or manage your answers even without revising one day prayer. That is the importance of this video. Now in Anta Parimarjana, you have two things. One is mainly the ahara. Here certain Ritucharya, you can get both Patya and Apatya. This should be taken, this should not be taken. जहां पर लिखा है लेना है वो आप लिख सकते हैं, जहां पर लिखा है नहीं लेना है वो भी आप लिख सकते हैं. कौन सा सेवन के लायक है, कौन सा पत्य है, कौन सा अपत्य है. अब आहार के विषय जब आती है तो आहार में हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, हम आगे आएंगे. वही परिमार्जन में क्या आएगा, वन इज लेपा, सर्टेन लेपा आर मेंशन्ड, सर्टेन अभ्यंग procedures are mentioned, certain udvartana adi mentioned. So any of the procedure which is followed on the external part of the body will come under बही परिमार्जन. जब आप फ्लो चार्ट डालेंगे एक एक जहां पर ये एप्लीकेबल है आपको वहां पर लिखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल शोधना, in this ritu this shodhana is advised. Shamana, that is one is Dravyabhuta, Dravyabhuta, Anta Parimarjana, Bahi Parimarjana. In Anta Parimarjana, Ahara, then Bahi Parimarjana, this lepa is indicated. Like that, you can easily manage. अब हम आएंगे अद्रव्यभूत. अद्रव्यभूत में जब हम आएंगे वहां पर विहार मिलेगा. विहार, you can get to know the विहार, व्यायाम आदि, व्यायाम or anything where you are not giving drug as such or neither you are applying it over the body but certain activities are mentioned. तो ये हो गया. तो एक पॉइंट मैंने मिस किया यहाँ पर, वो है फूड रिलेटेड. दैट इज फूड रिलेटेड आहार. आहार में आपको क्या लिखना है, कौन सा रस लेने के लिए बताया, कौन सा गुण लेने के लिए बताया, कौन सा विपाक लेने के लिए बताया, कौन सा वीर्य लेने के लिए बताया. मतलब द्रव्य का कौन सा रसयुक्त द्रव्य को लेने के लिए बताया. इस तरह से आपको रसपंचक के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं. इजिली यू कैन मैनेज दिस. इसी अध्याय के लास्ट में आपको कौन सा रस लेना है वो भी लिखा है और इस कौन सा वीर्य लेना है वो भी लिखा है, गुण भी लिखा है. तो सब कुछ आपको एक ही अध्याय में मिलेगा लास्ट पार्ट में. यू लर्न दैट यू कैन मैनेज ऑल 6 ऋतु. नाउ आई थिंक विद दैट आहार, certain dravya also may be mentioned in ahara. Dravya, names of certain drugs, maybe puranashali, maybe the madhya, maybe the honey, that is nothing but madhu. Specifically dravya may be mentioned, that also you can mention in the ahara, that is savior. Now dravya bhuta I mentioned now. Now any other than this, any special yoga or many specifications like ansodaka, or whether there is any specific rule about madhyapana, whether there is any specific yoga in relation to grishma ritu. So those things you can mention at last in case of specific or special yoga, special preparations in this particular ritu. Now with this information I think you got an idea how to manage now. Now again coming forwards, the Sutrasthana Adhyaya 1 indicates which rasa is applicable for dosha prashamana और दोष वर्धन. So जब आप लिखेंगे कि इस ऋतु में ये रस लेने के लिए बताया, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्योंकि ये इस दोष को शमन करने वाला है. बिकॉज इट इज कफ शामका, बिकॉज इट इज वात शामका. रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है आपका सूत्र 1. जैसे शरद ऋतु में कषाय तिक्त मधुराह आर द वंस व्हिच नीड्स टू बी यूज्ड. नाउ दे आर नथिंग बट पित्त शामका. तो उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. मींस रीजन जो है आपको पहले अध्याय में देखने को मिलेगा. जैसे आपको शरद ऋतु में अगेन रक्तमोक्षण है या विरेचन है, वो परम औषध है, वहां पर विरेचन पित्त के लिए बताया, तो वो भी आपको परम औषध के कॉन्सेप्ट में फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा. तो एक क्रॉस रेफरेंस है कि इस अध्याय में इसका रीजन दिया गया है. सिमिलरली इन सेकंड अध्याय जो व्यायाम है वो कफ क्षय कर बताया. तो कफ दोष जहां पर वृद्ध होता है, वृद्ध होगा, देयर यू हैव टू यूज द व्यायाम. wherever कफ दोष इज अगेन अंडर प्रकोपस, देयर यू हैव टू यूज उद्वर्तन बिकॉज़ उद्वर्तनम कफहरम. तो इस तरह से जो रीजन है यू आर गोइंग टू गेट इन दिस केस ऑफ दिनचर्या अध्याय. जहां पर वात प्रकोप है वहां पर अभ्यंग के लिए बताया, वात शामक है. सो दिस काइंड ऑफ cross references need to be used in this case of dinacharya. Now in 5th chapter and even 6th chapter कोई भी द्रव्य वहां पर बताया, जैसे पुराणशाली का अगर आपको गुणधर्म याद है तो आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं. अगर मान लीजिए आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो नीड टू वरी. बट इफ यू ऐड देन इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल आंसर बिकॉज यू नो एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऋतुचर्या फ्रॉम both classical as well as application point. That is the most important point. Even though we are discussing the examination point of view, but ultimately अगर आपको इस तरह से पढ़ाई आता है तो इसका मतलब आप बिल्कुल एक परफेक्ट आयुर्वेद वैद्य बन के बाहर जाएंगे. तो सिमिलरली इवन लिक्विड फूड जैसे तक्र इज एडवाइज्ड. देन तक्र व्हाट इज द गुण वीर्य, व्हाई इट इज यूज्ड, व्हिच दोषहर. सो सर्टेन थिंग्स यू कैन इवन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5th and 6th. सो दिस इज इन रिलेशन टू
how cross references can be used in 5th and 6th. Now in 7th adhyaya you have some specific point like ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु इज इंडिकेटेड फॉर दिवस स्वप्न. अगर ग्रीष्म ऋतुचर्या आ गया तो दिवस स्वप्न को आप लिख सकते हैं, इंडिकेटेड है. बाकी ऋतुचर्या आ गया तो दिवस स्वप्न कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि वो कफ पित्त कर है. तो ये भी वहां पर मिलेगा आपको. रेफरेंस कहां पर मिलेगा? ये आपको अन्नरक्षा अध्याय में मिलेगा. मैथुन कर्म कितने दिन के गैप में, इच्छानुसार कब कौन से ऋतु में चलेगा, 7-7 दिन के गैप में, 15 दिन के गैप में, या बहुत गैप होने के बाद. दिस ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द केस ऑफ द अन्नरक्षा अध्याय, बट द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इज इन रिलेशन टू ऋतुचर्या. अगर वो ऋतुचर्या आ गया जो आपके उस अध्याय में है तो उस ऋतुचर्या में आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं आया, दूसरा आ गया, तो वहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू मैनेज दिस अध्याय ऑफ अन्नरक्षा in relation to the Ritucharya Adhyaya. So at the end of the answer, always add a point on Ritu Sandhi. Even though this is the Ritucharya which needs to be followed, at the end of this particular Ritu, there is a concept of Ritu Sandhi. I think you know that very well. आपको उसको उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिए. Now, one question you may get in your mind is whether shloka is necessary for Ritucharya. श्लोक अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है. First at least few lines, जैसे फर्स्ट 2-3 लाइन जो ऋतु के वर्णन करते हैं, अगर आप वो याद कर सकते हैं तो जरूर आपको वो एग्जाम में लिखना चाहिए. तो 2 से 4 लाइन की श्लोक हर एक ऋतु में आप याद कर लीजिए. अगर हो पाएगा तो बढ़िया है, अदरवाइज स्टिल यू कैन मैनेज विद संस्कृत वर्ड्स. सो वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, डोंट ट्राई टू कंपेयर ऋतुचर्या ऑफ क्लासिक्स विद दैट ऑफ सर्टेन योर रिसेंट नॉलेज. तब क्या होगा, आपका आंसर कहीं ना कहीं अष्टांग हृदय या चरक संहिता से दूर जाएगा. तो डोंट यूज टर्मिनोलॉजी लाइक समर, विंटर, ये आ गया वो आ गया. बेटर टू यूज दिस संस्कृत टर्मिनोलॉजी and better to go with our Shat Ritu, because in modern terms it is only 4 or 3 or 4 seasons, so definitely it doesn't match with our science. Now most of the information should be kept in classics. So if you can avoid this and mention the classical information, if the question is asked for 5 marks, there are high possibilities that you get 5 out of 5. If it is asked for 10 marks, definitely you can expect 8 to 9 marks, or at least 9 can be considered as sure shot and like marks. So this way we have discussed how Ritucharya needs to be answered. After analyzing these answers, अगर आपको ये एनालिसिस आ गया आपके दिमाग में, आप में एक बहुत अच्छा आयुर्वेद वैद्य बनने वाले हैं, बिकॉज दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई दोषोपक्रम. दोषोपक्रम के संदर्भ में भी यही आए कि इस दोष के उपक्रम में आप इस ऋतुचर्या को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगेन सूत्र 12, ये मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ या एक हिंट दे रहा हूँ, तो आप जरूर जाके देखिए कि ऋतुचर्या के संदर्भ में जो दोषोपक्रम है वो क्या है. ये सूत्र 13 में आएगा, ये दोषोपक्रमणी अध्याय में आएगा. तो आप जरूर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऋतुचर्या पढ़ने से आपको क्या क्या फायदा होगा. सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर. सो आई हैव नॉट गिवन अ रेडीमेड आंसर एज सच, क्योंकि उसको देने से मेरा उद्देश्य ठीक नहीं होगा. मेरा उद्देश्य ये था कि आपको ये कैसे लिखना है, हाउ टू एनालाइज द टॉपिक एंड राइट इट इन द प्रेजेंटेबल फॉर्म इन द एग्जामिनेशन. दैट वाज माय इंटेंशन. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू idea on how to present the answer. So if you like the content, kindly like, share and subscribe to the channel. आपके कोई भी आयुर्वेद के साथी हो या फ्रेंड जो भी आपके आप जानते हैं और दूर पढ़ रहे हैं, जरूर आपको इस वीडियो उनको उनके तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम सभी को आवश्यक है और आपकी हेल्प से शायद उनका भला भी हो सकता है. तो अगली वीडियो तक धन्यवाद.